Welcome, my dear students. We will continue with the hydrocarbons, and in hydrocarbons, our discussion was going on for alkanes, and in alkanes, we were talking about reactions of alkane. Reactions of alkanes, and in this reactions of alkanes we were talking about halogenation. So as we all very well know, halogenation is a reaction where hydrogen atom of alkane is replaced by halogen atom. So it is replaced by halogen atom and we get alkyl halide. So this is an alkane, RH. Hydrogen atom of alkane is replaced by halogen. We get RX, and this is what we call alkyl halide. That halide ion can be chlorine, bromine, iodine or fluorine. So that's why we call it as halogenation. In halogenation, we had seen chlorination earlier, chlorination. So what happens in chlorination? That when propane or alkane is allowed to react with chlorine gas in presence of ultraviolet radiations, what we get here as two products. This is the first carbon, second carbon and the third carbon, and the alkane is propane, allowed to react with chlorine gas in presence of ultraviolet radiations. What happens? Hydrogen of first carbon can be replaced, so we get one product. Second case में क्या होगा? Hydrogen of the second carbon get replaced by chlorine. So CH3 CH2 CH2Cl. We get here one chloropropane. One chloropropane. Next test में क्या हो जाएगा बेटा? अब second carbon है. Second carbon of propane is having substitution of chlorine. So we get the product here 2 chloropropane. Now 1 chloropropane and 2 chloropropane are the product which we get after substitution. What we see here, that 1 chloropropane is found to be 45%. 1 chloropropane is found to be 45%, whereas 2 chloropropane is found to be 55%. So it is the substitution of carbon by substitution on carbon by chlorine with the hydrogen. So hydrogen of this carbon is replaced by chlorine and we get 1 chloropropane which is found to be 45% in yield, and 2 chloropropane is 55% yield. Similarly, we can see here for butane also. If we consider butane, CH3, CH2, CH2, okay, we take a butane, isobutane we take. So CH3, CH, CH3, that is 2-methyl propane. 2-methyl propane. We can call it as isobutane. Okay, तो बेटा अब क्या होगा यहाँ पर? This is the first carbon और this is the first carbon, है ना? ये देखिए क्या हो गया, प्रोपेन हो गया और ये सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ गया. तो हमने नोमेनक्लेचर क्या किया इसका? 2-methyl प्रोपेन. अब हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है क्लोरीन से, तो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर दिया. कंडीशन तो हमें पता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. अब यहाँ क्या प्रोडक्ट मिलेगा? यहाँ भी वही पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो सकता है,
वैसे ही सेकेंड कार्बन पे भी हाइड्रोजन है ना, वो भी रिप्लेस हो सकता है। तो अगर फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो पेरेंट कंपाउंड तो वही रहेगा, दिखाई दे रहा है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अब हमें दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि सेकेंड कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, तो उसमें ये CH3 CH3 और ये बेटा सेकेंड कार्बन का हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया, तो CH के जगह Cl हो गया। दिस CH3 विल रिमेन एज इट इज। इसका नोमेनक्लेचर होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, yes, 2 chloro 2 methyl propane, so you know it very well। अब इसमें भी यील्ड अलग अलग आ जाएगी कि 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन में 1 क्लोरो is 64%, 1 chloropropane, this compound, this is what we get 64%, and 2 chloro 2 methyl propane is 36%. So we get two product in each substitution because there are number of carbon atom which carries a hydrogen atom, and those hydrogen can be replaced by chlorine in presence of ultraviolet radiation. So simple chlorination which takes place in different ways, giving mixture of product, and we get here their different yield also. Now after chlorination we will see bromination. Now bromination of alkane is equally simple। आप अल्केन लिए RH और यहाँ पर H को रिप्लेस करना है Br से, तो आपको मिलेगा अल्काइल ब्रोमाइड। करेक्ट है, अल्काइल ब्रोमाइड। So let us carry out this bromination for ethane C2H6. We take ethane C2H6 and bring about its bromination and under the similar condition of ultraviolet radiation. Now what is the possibility, दो कार्बन है तो कोई भी एक कार्बन का हाइड्रोजन हेलोजन यानी ब्रोमीन से रिप्लेस कर देंगे आप, तो क्या मिल जाएगा बेटा अपने को CH3 CH2Br, that is what we get 1 bromoethane, or simply we can call it as bromoethane. Only one product is possible. But if we take next example as propane, CH3 CH2 CH3, now there are possibility है ना of replacing hydrogen from different carbon atom. The first carbon atom can have the replacement, second carbon can have that replacement, and in doing so we get two product. One is what, the primary or the first carbon, तो मिलेगा हमको 1 bromopropane, 1 bromopropane। दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3, ये सेकेंड कार्बन पे Br आ गया तो ये CHBr and we get here CH3, we name it as 2 bromopropane। Now what is more important regarding bromination? Bromination is a very selective kind of substitution. Here 1 bromopropane is found to be just 3% and a very minor product, whereas 2 bromopropane is found to be 96% product which is in major yield. So this is about propane. When we take butane, CH3 CH2 CH2 CH3
and bring about its bromination using again ultraviolet radiation. तो बेटा फिर से अपने को यहाँ दो प्रोडक्ट मिलेंगे, देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा मैं लिखता हूँ, ठीक से देखेंगे आप, प्लीज फोकस योरसेल्फ। तो हमें यहाँ पर अब दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, चलिए यहीं पर लिखते हैं, दो प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे अपने, स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, ब्रोमीन लिया एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सो ब्यूटेन प्लस ब्रोमीन वी गेट टू प्रोडक्ट अगेन एंड द प्रोडक्ट इज वंस अगेन क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। सब्स्टिट्यूशन काहे पे पॉसिबल है, 1 पे और 2 पे, यहां से शुरू किया या इधर से शुरू किया लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 और 2 पे ही पॉसिबल होगा। तो दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3 CH2 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 Br। नाम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। और नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा अब हमको, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो CH3 CH2 CHBr CH3। सेकेंड कार्बन पे Br आ गया, यहाँ फर्स्ट कार्बन पे, एंड दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। नाउ 2 bromobutane and 1 bromobutane, out of this is found to be just 2% and 2 bromo is found to be 98%. So जैसे कार्बन के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो सेकेंडरी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन मोर यील्ड देगा, प्राइमरी पे सब्स्टिट्यूशन कम देगा ब्रोमिनेशन में। अब ब्यूटेन में भी वही किया कि ये प्राइमरी कार्बन यानी फर्स्ट कार्बन, उस पे सब्स्टिट्यूशन आया जस्ट 2%, बट सेकेंडरी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन का आया, we get more yield of it. So this is what the bromination we see for propane and butane. If we take further more substituted alkane, है ना, टर्शियरी अगर लेते हैं हम, तो ये तो प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी वाला हो गया। नाउ इफ वी टेक 2-methyl propane, 2-methyl propane, so 2-methyl propane, this carbon is in fact tertiary carbon, है ना, और ये तीनों कार्बन जो रहेंगे प्राइमरी हो सकते हैं because they are at the terminal ends. So this is tertiary since it is bonded to 3 other carbon. इस पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए यहाँ पर, अब ultraviolet radiation if we take here, so again we get two product, what this two product which we have is primary, that is first carbon पे, so one, इसका nomenclature लिख लेते बेटा पहले, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 2-methyl propane, 2-methyl propane, this is the name of reactant। अब प्रोडक्ट में क्या होगा कि ये फर्स्ट प्राइमरी कार्बन पे यहाँ पर ब्रोमिनेशन आ गया और इसका नोमेनक्लेचर बना 1 ब्रोमो 2-methyl प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2-methyl प्रोपेन। ये फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन आ गया तो 1 ब्रोमो, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, सो 2-methyl। नाउ नेक्स्ट स्टेप में कहाँ सब्स्टिट्यूशन जाना चाहिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम क्या करें, अब ये जो टर्शियरी कार्बन का हाइड्रोजन है वहां पर सब्स्टिट्यूशन करें एंड वी गेट हियर कंपाउंड टू बी नेम्ड एज 2-bromo 2-methyl propane, 2-bromo 2-methyl propane, करेक्ट, 2-bromo 2-methyl propane। अब आपके पास दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, एक है 1 bromo 2-methyl propane और दूसरा है 2-bromo 2-methyl propane। This is found to be in traces
in a very small quantity, traces में, बहुत कम quantity में, and this is found to be 2-bromopropane, almost 99%. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ब्रोमिनेशन के चारों एग्जाम्पल आपके सामने है ना. एग्जाम्पल नंबर 1 इथेन, एग्जाम्पल नंबर 2 इज प्रोपेन, एग्जाम्पल नंबर 3 इज ब्यूटेन एंड एग्जाम्पल नंबर 4 इज 2-मिथाइल प्रोपेन यानी आइसोब्यूटेन. सो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं तो मोर सेकेंडरी bromo derivative is more in the yield, tertiary derivative is more in the yield. That's why we say bromination of alkane is a very selective kind of reaction. So ये हो गया हमारा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन. अब आयोडीनेशन इसमें हम पढ़ते नहीं है बिकॉज आयोडीनेशन इज a reversible reaction. So we don't go for iodination. Now related to halogen and especially chlorination, we will see something more about this. Now halogenation, that is chlorination. Halogenation, that is chlorination. We will see about chlorination. Now what we see that chlorination, it follows free radical mechanism. It follows free radical mechanism. Very interesting part, free radical mechanism. Now we know this term free radical. Free radical, those atom or group which carry just one electron is what we call as free radical, and they are the attacking reagent, है ना. They are the attacking reagent like nucleophile and electrophile. वो हमने पढ़ा था. तो free radical is an attacking reagent and it follows chlorination follows free radical mechanism. Now this free radical mechanism is a chain reaction mechanism. Chain reaction mechanism, है ना. तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि स्टेप 1 में क्या होगा यहाँ पर, that we should get the attacking reagent as free radical. So step 1 में homolysis. We had seen homolysis and heterolysis. Homolysis is symmetrical breaking of covalent bond. Heterolysis is unsymmetrical breaking of covalent bond. Homolysis takes place in presence of ultraviolet radiations or heat or in presence of catalyst. So that is homolysis. So once again, homolysis is a symmetrical breaking of covalent bond providing free radicals. तो यहाँ क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में homolysis of chlorine molecule takes place, giving chlorine free radical, giving chlorine free radical. तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में स्टेप 1 क्या रहेगा, होमोलिसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल टू गेट क्लोरीन फ्री रेडिकल. वी टेक हियर दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, है ना. तो Cl2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर कि 2 क्लोरीन है, एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है. तो 1 कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन पेयर. तो बेटा ये आ गई इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों क्लोरीन के बीच में. अब हम क्या करने वाले हैं, इसका होमोलिसिस करेंगे. कंडीशन क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और सनलाइट और हीट. तो क्या होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने वाला है. अब ये सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे जाएगा,
एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे जाएगा, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कह रहे हैं हम, सो वी गेट हियर 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, करेक्ट। ये एक क्लोरीन फ्री रेडिकल और ये दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल, वी गेट क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल हमारे पास स्टेप 1 में आ गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा? अल्केन पे अटैक करेगा, मीथेन पे। तो हम यहां डिस्कस करेंगे चेन मैकेनिज्म, चेन रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। एग्जाम्पल क्या कंसिडर कर रहे हैं? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। और वो क्लोरीनेशन के लिए हमने फर्स्ट स्टेप में क्या कर लिया है बेटा? यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमने अटैकिंग रिएजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल वी हैव क्रिएटेड। नाउ दिस फ्री रेडिकल विल अटैक ऑन मीथेन। तो स्टेप 2 में क्या होगा? फ्री रेडिकल विल अटैक ऑन मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। मैं CH4 को थोड़ा इस तरह से लिखता हूं, CH3H, यानी हमारे लिए अटैक ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल विल बी इजी। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल FR यानी फ्री रेडिकल हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर? ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस पे अटैक करेगा। अटैक करने से आपको क्या मिलेगा? यहाँ साइड प्रोडक्ट HCl एंड वी गेट हियर दिस मिथाइल फ्री रेडिकल, वी गेट मिथाइल फ्री रेडिकल, कार्बन विथ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री रेडिकल ने मीथेन पे अटैक किया और प्रोड्यूस क्या किया? मिथाइल फ्री रेडिकल। Now this methyl free radical is highly unstable. All the free radicals are highly unstable. So this methyl free radical, methyl free radical, methyl free radical is highly unstable. This will react with chlorine molecule Cl2 in gas phase and in presence of अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो चल ही रहा है, यहां भी वही रिएक्शन कंडीशन है, सही है। तो मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होता है कि जो रिएक्शन है उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, हाउ डज इट टेक्स प्लेस, दैट वी स्टडी इन मैकेनिज्म। सो हियर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या देखा हमने? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल थ्रू होमोलिसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। स्टेप 2 में क्या किया कि जो अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल क्लोरीन था वो मीथेन पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या मिल रहा है हमको? मिथाइल फ्री रेडिकल। एंड दिस मिथाइल फ्री रेडिकल नाउ इन द सेकंड part, what this will do? Methyl free radical reacts with chlorine gas producing methyl chloride, that is what the product we require. And what it generate in the process? It generate free radical again. तो हर स्टेप में फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो रिएक्शन प्रोपोगेट होते जाएगी। तो स्टेप 2 को हम क्या बोलेंगे? प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मीन्स विच विल बी कैरीड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दिस रिएक्शन विल कैरी आउट फर्दर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाउ डज दिस विल कैरी आउट फर्दर? अब क्या हो गया? आपने क्या किया? सेकेंड पॉइंट क्या किया? मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन से रिएक्ट हो रहा है, आपको मिथाइल क्लोराइड और क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल रहा है। Now because of the formation of chlorine free radical, this will continue further. How it is going to continue further? ये यहाँ पर लिखता हूं मैं, आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल है, अब वो फिर से मीथेन पे अटैक करेगा और मीथेन से रिएक्ट होने के बाद आपको क्या मिलेगा? मिथाइल फ्री रेडिकल एंड HCl। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर से ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा
और क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके आपको क्या देगा, मिथाइल क्लोराइड, एंड वंस अगेन वी गेट क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो इसी का रिपीटिशन होते जाएगा और ऐसे रिपीटिशंस होते रहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोपोगेशन ऑफ रिएक्शन। तो पहले इनिशिएशन किया by producing free radical, and using that free radical we have propagated the reaction and chlorination of methane, है ना। chlorination of methane में बेटा प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3Cl plus HCl। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है CH3Cl plus HCl in presence of ultraviolet radiations। आप ये एक काम करो ना, इसको लिख लिया है जस्ट समझने के लिए, ये दोनों को ऐड कर दो, ऐड दिस टू रिएक्शन। अगर आप ऐड करते हैं तो यहां से क्या क्या कैंसल हो जाएगा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल कैंसल होगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल कैंसल होगा। अब बचेगा क्या, ये देख लो, ये CH3H plus ClCl विल गिव, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट साइड में क्या मिला, CH3Cl plus HCl। यही तो है, क्या है, यही तो है वो, और वो क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो ये प्रोपोगेशन होते होते आपको मिथाइल क्लोराइड एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलते जाएगा। ये सेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोगेट किया, यहां मिथाइल क्लोराइड मिला, यहां मिथाइल क्लोराइड, दिस विल कंटिन्यू एंड वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट एज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, और सेकेंड स्टेप क्या आ गया बेटा, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल ऑन मीथेन गिविंग मिथाइल क्लोराइड। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन अंडर द हेडिंग हैलोजिनेशन। नाउ we'll move to the next reaction of alkane, and that is combustion reaction, and this is what the easiest reaction of alkane, but very useful. By this reaction we come to know that alkanes are good fuels. They are good fuels used for cooking, used for automobile and other purposes. तो combustion reaction, अब combustion reaction this is the simplest reaction। अब जैसे आपने यहाँ पर अल्केन लिया मीथेन, इसका बेटा combustion करना है, तो combustion करना है, it should be heated in presence of oxygen or with air। in presence of air अगर ये मीथेन को हम हीट करते हैं, इसका कंबशन करते हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बन गेट कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गेट कन्वर्टेड टू वाटर मॉलिक्यूल एंड सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेट्स लिबरेटेड। और ये हीट एनर्जी हम अल्केन का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, है ना। एलपीजी गैस है, सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल है, ऑल this heat energy is helpful for fuel purpose. Okay, so alkane are good fuels because during combustion reaction it gives carbon dioxide and water molecule as the oxidation product, but lot of heat energy also gets generated. Now ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हमने, मीथेन का कंबशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल आ गया। अब ये ऑक्सीजन प्रॉपरली बैलेंस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने उस तरफ अभी ध्यान नहीं दिया। अब देखिए मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है ना। ये गुरु मंत्र याद रखेंगे आप, क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन दो ही चीज है,
और उसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑक्सीजन का, तो कार्बन का बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। सो इजी। लेकिन बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाउ मेनी कार्बन, वन कार्बन विल प्रोवाइड वन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन में याद रखेंगे द नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल, तो हियर इट इज 4। सो हाइड्रोजन में क्या होता, जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर 4 हाइड्रोजन है तो आप 2 वाटर मॉलिक्यूल लिख दो, हाफ हाइड्रोजन, हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो 4 हाइड्रोजन है, 2 वाटर मॉलिक्यूल वी गेट। नाउ दिस साइड इज परफेक्टली बैलेंस्ड with carbon and hydrogen. Now what remains is oxygen. तो यहां ऑक्सीजन काउंट करते हैं और यही ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस करने का है। तो बेटा यहां पर कितने ऑक्सीजन के एटम्स दिख रहे हैं अपने को, Vc2 plus 2. So total 4 oxygen atom are on the right hand side, on the product side. 4 should be there on the left hand side. So after writing carbon dioxide and water molecule, next target, find the number of oxygen atom. Total oxygen atom are 4. So mention here 4 oxygen atoms. So here it is O2, यानी 2 oxygen है. 2 into 2 is 4. Here 4 oxygen on the left hand side, 4 oxygen atom on the right hand side. Balance हो गई reaction. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, C2H6 प्लस O2 हीट करना है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिएक्टेंट आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया इथेन। अब इथेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 2 CO2। हाउ मेनी CO2, 2 CO2। Now hydrogen available 6, 6 का हाफ 3, तो ये 3H2O बन गया, करेक्ट है। तो इथेन ने आपको दिया twice CO2 and thrice H2O. Now find out oxygen here. ऑक्सीजन एटम कितने हैं, so oxygen 2 2s are 4 and here 3 oxygen. हाइड्रोजन 6 है लेकिन ऑक्सीजन बेटा कितने हैं, 3, तो ये 4 हुए, ये 3 हुआ, टोटल 7 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और 7 ऑक्सीजन अब यहां लिखने का है अपने को। तो क्या करने का, इजीएस्ट वे 7/2 O2 लिख दो, अपने आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन 7 आ जाएंगे, होगा ना। ये 2 into 2 यहाँ पर by 2 है वो, और into 2 कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, 7 ऑक्सीजन आ गए आपके पास में, 7/2 O2। ऑक्सीजन को सिंगल नहीं लिखते हमेशा, है ना, इसको ऐसा नहीं लिख सकते 7 ऑक्सीजन एटम, वी कैनॉट राइट बिकॉज इट इज ऑलवेज अवेलेबल इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है तो O2 तो लिखेंगे। अब O2 कितने, 7/2 O2 मीन्स 7 आ जाएंगे। तो ये हो गया एक बैलेंस करने का। अब एक लास्ट एक और एग्जांपल, C3H8 प्रोपेन ले लेते हैं, प्रोपेन। अब इसमें भी ऑक्सीजन, तो पहले सिर्फ O2 लिखने का, बाद में हम जब राइट साइड में प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन काउंट करेंगे तब बैलेंस करने वाली बात है, तो उतना अलर्टनेस तो रहेगा। तो अब क्या देखते हैं यहाँ पर, हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल, 8 हाइड्रोजन है तो उसके हाफ यानी 4 वाटर मॉलिक्यूल आ गए, और ये हीट तो लिख ही रहे हैं हर बार। सो 3 carbon, 3 CO2, 8 hydrogen, 4 H2 water molecule. Now find out oxygen here. How many oxygen? 3 2s are 6. 6 plus 4,
6 + 4 is 10। तो 10 ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे अब 10/2 O2 लिखेंगे, 10/2 O2। अब 10/2 हमें पता है कि 5 होता है, तो ये इजी है हमारे डिवीजन के लिए, तो यहाँ पर 5 O2 कर दीजिए आप। वैसे तो 7/2 भी कोई बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है ना, 3.5 3.5, लेकिन वो 3.5 लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो याद रखने के लिए 7/2, इसको क्या लिखेंगे 10/2 यानी 5 O2। तो 10 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 10 ऑक्सीजन इधर हो गया। तो ये बेटा कंबशन। तो फाइनली हम क्या याद रखेंगे, कंबशन ऑफ अल्केन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन or in presence of air. When alkanes are heated in presence of oxygen or air, what we get, carbon dioxide and water molecule, and lot amount of energy get liberated. This heat energy is used for various purposes. So that is the important part of combustion of alkane. It provides lot of heat energy. अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन या कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने का मैंने क्या तरीका बताया कि आपने अल्केन लिखा, उसके सामने ऑक्सीजन O2 लिख दिया, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल। नाउ काउंट ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड एंड put those oxygen atom on the left hand side, your reaction will be properly balanced. एक और तरीका है to balance this reaction. To balance such reaction, what we take here, alkane, CnH2n + 2, alkane लिया, इसके साथ O2 ऑक्सीजन को हमें यूज करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है ये देखेंगे आप, कि एक नया तरीके से इसको और बैलेंस कर सकते हैं, thrice n + 1/2. This many times of oxygen is required to carry out combustion of alkane. So alkane लिया CnH2n + 2, this many times of oxygen thrice n + 1/2. अब n तो यहां से हमको मिल जाएगा अल्केन में, heated together this many oxygen, what we get, n times CO2. मैंने तो कहा जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, तो n times CO2 मिलेगा, एंड वाटर मॉलिक्यूल n + 1 H2O. We get n + 1 H2O. This is the other way of balancing such reaction. n + 1, thrice n + 1/2 times of oxygen. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने प्रोपेन ले लिया था, तो फोर्थ एग्जाम्पल ब्यूटेन लेते हैं, C4H10 ब्यूटेन, करेक्ट है। नाउ ये ब्यूटेन में n की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, n is 4। तो ऑक्सीजन कितने टाइम्स लेना पड़ेगा, 4, n की वैल्यू है तो 3 × 4, 4 × 3 is 12, 12 + 1 is 13, 13/2 times oxygen gas. n की वैल्यू 4 है, 3 × 4, 4 × 12, 12 और 1 13, 13, ये आ गया न्यूमरेटर में, /2 तो ऐसे ही लिख रहे हैं हम लोग, तो 13/2 O2 C4H10 के लिए। अब यहां पर ऑक्सीजन 13/2 लिया, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्शन, हाउ मेनी, n times CO2, n की वैल्यू कितनी है 4, सो वी गेट 4 times CO2। अब वाटर मॉलिक्यूल कितने टाइम्स मिलने वाला है, n + 1 times H2O। n + 1, n की वैल्यू 4 है, 4 + 1 is 5, here we get 5 H2O
प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो देखिए ये आ गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। कार्बन 4 है, कार्बन 4, हाइड्रोजन 10 है, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 13/2, 13/2 यानी कितना हो जाएगा 6.5। तो 13/2। अब देखो यहाँ कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चेक करेंगे, 4 2 8, 8 + 5 इज व्हाट 13। आ गया 13 ऑक्सीजन, 13/2 O2 लगा दिए। तो आप ऐसे बैलेंस कीजिए या जो मैंने फंडा बताया है वैसा कीजिए, दोनों का रिजल्ट तो वही आने वाला है ना। तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग एज वेल एज कंबशन ऑफ अल्केन। नाउ आफ्टर कंबशन the next reaction we take of alkane is pyrolysis. Pyrolysis is also termed as cracking of alkanes. Cracking of alkanes. और cracking of alkanes यानी क्या होता है कि higher alkanes are broken down when heated at high temperature in absence of oxygen. ऑक्सीजन अगर रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। अब पायरोलिसिस में क्या करते हैं कि हीट करते हैं लेकिन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर नहीं होता है वहां पर, सो वी डोंट यूज ऑक्सीजन। तो पायरोलिसिस वी टेक एग्जांपल C6H14 हेक्सेन। अब आप इसे हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे और कंडीशन क्या है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वी कॉल इट एज पायरोलिसिस। तो हेक्सेन लिया, हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर अराउंड 778 केल्विन, वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, इस टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो क्या होगा, इसकी ब्रेकिंग होगा, ब्रेक होगा बॉन्ड। आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर पायरोलिसिस में, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको जब हम ये हायर अल्केन को हीट करेंगे तो मिलेगा लोअर अल्केन्स एंड एल्कीन्स। तो ये हायर अल्केन हो गया हेक्सेन, इसके स्मॉलर फ्रैगमेंट, और वो फ्रैगमेंट्स में क्या रहेगा, अल्केन, लोअर अल्केन एंड अल्कीन्स। तो सबसे पहले देखते हैं, हमको मिलता है यहाँ पर C6H12 प्लस H2 गैस। C6H12 यानी क्या हो गया, ये हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। C6H12 इज साइक्लोहेक्सेन। तो मिला हमको यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन। देखिए कैसे होगा, C6H14 ये तो हेक्सेन हो गया। अब जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा C6H12 प्लस H2 गैस, लिबरेट होगी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है इसीलिए हाइड्रोजन लिबरेट होगी, नहीं तो वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्बन काय में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। ओके, तो ये बैलेंस हो गया C6H12 प्लस H2, तो ये मिलेगा हमको यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वी गेट मिक्सचर ऑफ इट। तो नेक्स्ट और पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, कि पॉसिबिलिटी जो रहेगी, व्हाट वी गेट हियर इज C4H6, C4H8, C4H8 is butene प्लस C2 6 है तो 8 प्लस 4 8 6 14, 8 4 12 होते, तो 8 6 14, तो ये 14 बैलेंस हो गए। तो C4H8 इज ब्यूटीन, अल्कीन मिला, और C2H6 इज ईथेन। तो देखो लोअर अल्केन आ गया, लोअर अल्केन एंड अल्कीन दोनों मिल गए आपको।
फ्रेगमेंट्स मिल गए। और क्या पॉसिबिलिटी है कि ये C6H14 also get converted into C3H6 and C2H4। C3H6 बेटा, C3H6 ये क्या हो गया? C3H6 is propene, C2H4 is ethene। अब क्या बच गया? 6 कार्बन थे, 3 + 2 5, एक कार्बन बच गया, तो एक कार्बन वाला नेचुरली मीथेन ही हो सकता है और दूसरा डेरिवेटिव नहीं होगा। तो दिस इज पायरोलिसिस। सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, पायरोलिसिस इज अ प्रोसेस or a reaction where higher alkanes are heated in absence of oxygen, providing lower alkanes along with alkenes. And this is what the best example to remember pyrolysis of alkane, which is also known as cracking of alkanes. तो हमने दो रिएक्शन पढ़ा अभी, एक पढ़ा कंबशन और दूसरा पढ़ा पायरोलिसिस। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू रिएक्शन? दैट combustion carried out in presence of oxygen or air, whereas pyrolysis carried out in absence of oxygen। ये हो गया pyrolysis reaction number 4। Now next number 3, next we move for the process or reaction we call as reforming। reforming, अब इसी को हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, और वी ऑल्सो कॉल दिस एज साइक्लाइजेशन। aromatization or cyclization. Now what happens in this reforming reaction or aromatization or cyclization reaction? Straight chain alkanes from C6 to C10 are heated at very high temperature, very high temperature of about 773 Kelvin in presence of 10 to 18 atmospheric pressure। तो प्रेशर कितना मेंटेन कर रहे हैं? 10 to 18 atmospheric pressure with catalyst। कैटलिस्ट यूज करेंगे वेनेडियम पेंटॉक्साइड और मैंगनीज ट्राइऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो ऑक्साइड्स यूज करने हैं हमको। तो ये कैटलिस्ट कोई भी एक V2O5 और Mn2O3 और CO2O3, what we get here, we get benzene। aromatization है, benzene is an aromatic compound, we get benzene and its derivatives, benzene and derivatives of benzene we get। So what is reforming? It is a cyclization process where straight chain alkanes are converted into aromatic cyclic compound, that is benzene and its derivative। अब स्ट्रेट चेन है, उसको साइक्लिक बनाना है, तो नेचुरली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो क्या क्या कंडीशन हमने यहाँ पर देखा है? पहली कंडीशन कि अल्केन कौन से लेवल के होने चाहिए? C6 to C10। C6 के नीचे वाले तो एरोमेटिक बना ही नहीं सकेंगे, तो इसीलिए C6 to C10। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई, 773 केल्विन, और प्रेशर क्या मेंटेन करना है? ऑफ अबाउट 10 to 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
and now the catalyst, any of it, catalyst यूज करना है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. Out of this, any one catalyst under this three condition will provide us benzene or the derivatives of benzene. Let us take example. Example number 1, straight chain alkane C6 यानी हेक्सेन यूज करते हैं हम लोग. तो स्ट्रेट चेन को लिख लेते हैं, है ना, दिखना चाहिए कि स्ट्रेट चेन है वो. तो ये देखो 6 कार्बन हो गए, CH3 1, CH3 2 एंड 4 टाइम्स CH2. तो ये हो गया N हेक्सेन यानी नॉर्मल चेन अल्केन. अब बेटा इसको हमें क्या क्या कंडीशन लगानी है ना, 3 कंडीशन है. पहली क्या है, 773 केल्विन, 10 to 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और थर्ड क्या है कि आपको यहाँ कैटलिस्ट भी लगने वाला है. तो दिस 3 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड एंड वी हैव मेंशन इट, temperature, pressure and catalyst. What we get here is benzene, cyclic compound. We get benzene. अब बेंजीन तो मिल गया लेकिन रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं हुई. अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता है, C6H6. तो C6H14 में से हमने कितना बेंजीन के लिए यूज किया, 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन. बाकी कितने बच गए, 8 हाइड्रोजन रिमेन्स. तो 4 टाइम्स H2 गैस गेट्स लिबरेटेड. तो ये 8 और 6 14, तो ये 14 हाइड्रोजन हो गए. तो देखिए रिफॉर्मिंग यानी क्या होता है कि स्ट्रेट चेन अल्केन को बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करना. तो एक एग्जाम्पल से तो समझ गया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे परफेक्ट समझ में आएगा. अभी N हेप्टेन लेते हैं, N हेप्टेन, CH3 CH2 5 टाइम्स CH3 हो गए टोटल 7 कार्बन. कंडीशन फिर से बोलेंगे, 773 केल्विन, 10 to 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड. क्या होगा, साइक्लाइजेशन, एरोमेटाइजेशन. और वो एरोमेटाइजेशन हेप्टेन यानी कितना होता, C7H 14 2 16, तो 16, C17H16. इसका साइक्लाइजेशन करो. तो 7 कार्बन का साइक्लाइजेशन आपने किया तो आपको मिलेगा मिथाइल बेंजीन. बेंजीन के डेरिवेटिव्स मिलने वाले हैं ना, तो ये डेरिवेटिव बन गया बेंजीन का, नेम्ड एज मिथाइल बेंजीन. और ये मिथाइल बेंजीन का एक कॉमन नेम हमें पता है, वी कॉल इट एज टॉलीन. अब बेटा इसको बैलेंस करना पड़ेगा. अब यहाँ इनफैक्ट कितने कार्बन यूज हो गए, 7 तो हो गए, 7 तो कार्बन यूज हो गए. ये मिथाइल बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, है ना. तो 6 रिंग पे और ये 7 कार्बन. हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 and 3 8, है ना. ये सब जगह एक एक हाइड्रोजन रहेगा. तो वो 5 + 3 is 8. 7 C7H8 is methyl benzene, that is toluene. और रिमेनिंग हाइड्रोजन, अब कितने हाइड्रोजन है, 16 में से 8 गया तो रिमेनिंग 8 हाइड्रोजन. तो रिमेनिंग 8 हाइड्रोजन यहाँ. तो हमने 4th रिएक्शन अल्केन्स का पढ़ा, रिफॉर्मिंग, दैट इज एरोमेटाइजेशन, वेयर स्ट्रेट चेन अल्केन्स गेट cyclized or aromatized into benzene and its derivative. कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेट चेन अल्केन कौन सा यूज कर सकते हैं, C6 to C10.
चलिए जी, ये हो गया हमारी फोर्थ रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन अल्केन्स की। अब अल्केन्स का लास्ट एस्पेक्ट क्या है जो आप सभी को बहुत इंटरेस्टिंग है और पता है, यूजेज ऑफ अल्केन। यूजेज ऑफ अल्केन्स। अब यूजेज ऑफ अल्केन्स में आप क्या देखते हैं कि जो लोअर अल्केन्स है, लोअर अल्केन्स आर लिक्विड्स and used as lubricants. So machines में, vehicle में they can be used as lubricants. First four member, उसके आगे की बात करें, first four member of alkanes are used as fuels for cooking and heating. उसमें कैसा है, एलपीजी कुकिंग में यूज होता है, सीएनजी जो है वो व्हीकल चलाने के काम में या हीटिंग प्रोसेस के काम में आता है। तो फर्स्ट फोर मेंबर्स आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। थर्ड एप्लीकेशन, इसी में हायर मेंबर्स are waxy in nature, waxy solids। और वैक्स का यूज क्या होता है ये हमको पता है, waxy solids hence used for manufacturing of candles। Also use, higher members are also used for preparing कार्बन ब्लैक। पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो कार्बन का पार्शियल हीटिंग जब होगी तो वी गेट कार्बन ब्लैक। दिस कार्बन ब्लैक इट इज यूज्ड for manufacturing of ink। जो इंक हम यूज करते हैं वो पार्शियल प्रोसेस करने से कार्बन ब्लैक मिलता है और वो कार्बन ब्लैक से हम इंक बनाते हैं। ये फोर एप्लीकेशन हो गए। एक फिफ्थ एप्लीकेशन जो हम बहुत कॉमनली देखते भी हैं कि C35 and above alkanes are tar and used in road surfacing। टार रोड बनते हैं ना, तो आजकल तो सीमेंट रोड ज़्यादा बन रहे हैं नागपुर में और इंडिया में, लेकिन टार रोड का अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो C35 एंड अबव अल्केन्स आर टार एंड यूज फॉर रोड सरफेसिंग। तो ये 5 एप्लीकेशंस हो गए अल्केन्स के। एंड हियर वी कंप्लीट द टॉपिक अल्केन्स। नेक्स्ट वी विल टेक एल्कीन्स। ओके, थैंक यू सो मच।